हेलो लर्नर्स। अगर कोई आपसे पूछे तुम इतने थके हुए क्यों लग रहे हो और आप जवाब दो आई हैव बिन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से काम कर रहा हूँ, यानी काम भूतकाल में शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है। ऐसी स्थिति में हम प्रयोग करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज हम प्रेजेंट टेंस का चौथा और आखिरी हिस्सा सीखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। Definition: Present perfect continuous tense is used to express an action that started in the past and is still continuing in the present. Present perfect continuous tense का प्रयोग उस काम के लिए किया जाता है जो भूतकाल में शुरू हुआ और अब तक जारी है। In short, जिस सेंटेंस के पीछे ता रहा है, ती रही है या ते रहे हैं लगता है, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। स्ट्रक्चर: Affirmative sentences, सकारात्मक वाक्य। Subject plus has or have plus been plus verb plus ing plus object plus since or for plus time. Example: I have been studying since morning. मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। She has been working in this office for 2 years. वह 2 साल से इस ऑफिस में काम कर रही है। नकारात्मक वाक्य। Subject plus has or have plus not plus been plus verb plus ing plus object plus since or for plus time. Example: I have not been studying since morning. मैं सुबह से नहीं पढ़ रहा हूँ। He has not been playing for 2 hours. वह 2 घंटे से नहीं खेल रहा है। Interrogative sentences, प्रश्नवाचक वाक्य। Has or have plus subject plus been plus verb plus ing plus object plus since or for plus time. Have you been working here since 2020? क्या तुम 2020 से यहाँ काम कर रहे हो? Has she been cooking for an hour? क्या वह 1 घंटे से खाना बना रही है? कहाँ प्रयोग करें? Action started in past and still continuing. भूतकाल में शुरू हुआ और अभी जारी है। I have been reading this book since morning. मैं सुबह से यह किताब पढ़ रहा हूँ। They have been playing cricket for 3 hours. वे 3 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं। Temporary actions, अस्थायी काम। She has been living in Delhi for 6 months. वह 6 महीने से दिल्ली में रह रही है। He has been studying for the exam for a week. वह 1 हफ्ते से परीक्षा की तैयारी कर रहा है। Difference between since and for, since और for का अंतर। Since means exact point of time, सटीक समय। Example: since morning, सुबह से। Since 2010, 2010 से। Since Monday, सोमवार से। For means period of time, अवधि। Example: for 2 hours, 2 घंटे से। For 5 years, 5 साल से। For a week, 1 हफ्ते से। Examples: I have been waiting here since 9 a.m. मैं सुबह 9 बजे से यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। She has been learning English for 3 months. वह 3 महीने से अंग्रेजी सीख रही है। मुख्य नियम: हमेशा हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस ing का प्रयोग करें। सेंस का प्रयोग तब करें जब एग्जैक्ट टाइम पता हो। फॉर का प्रयोग तब करें जब अवधि ड्यूरेशन बतानी हो। कॉमन मिस्टेक्स, सामान्य गलतियां। I have been studying since morning. It's incorrect. I have been studying since morning. It's correct. She have been working here since 2020. It's incorrect. She has been working here since 2020. It's correct. They has been playing for 2 hours. It's incorrect. They have been playing for 2 hours. It's correct. Practice sentences. Affirmative. I have been working here for 5 years. मैं यहाँ 5 साल से काम कर रहा हूँ। He has been playing since morning. वह सुबह से खेल रहा है। Negative. I have not been sleeping for 2 days. मैं 2 दिनों से नहीं सो रहा हूँ। She has not been studying since Monday. वह सोमवार से नहीं पढ़ रही है। Interrogative. Have you been waiting for me? क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे हो? Has he been reading since 6 o'clock? क्या वह 6 बजे से पढ़ रहा है? Real life examples. दैनिक जीवन के उदाहरण। जब आप देर से पहुंचते हैं। Sorry. I have been working on my assignment since morning. माफ कीजिए, मैं सुबह से असाइनमेंट पर काम कर रहा हूँ।
जब कोई आपकी मेहनत पूछता है, आई हैव बिन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स फॉर 2 months। मैं 2 महीने से परीक्षा की तैयारी कर रहा हूं। सोशल मीडिया पोस्ट, आई हैव बिन लर्निंग गिटार फॉर 1 year। मैं 1 साल से गिटार सीख रहा हूं। प्रैक्टिस फॉर व्यूअर्स। अब आपकी बारी। नीचे दिए गए वाक्यों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदलकर कमेंट बॉक्स में लिखें। वह क्रिकेट खेलता है। मैं यहाँ काम करता हूँ। वे अंग्रेजी सीखते हैं। वह दिल्ली में रहती है। मैं इंतजार करता हूँ। तो दोस्तों, आज हमने सीखा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आज आपने समझा इसकी डेफिनेशन, स्ट्रक्चर, यूजेस, सिंस और फॉर का फर्क, रूल्स और मिस्टेक्स, प्रैक्टिस सेंटेंसेस। अब आप कॉन्फिडेंटली वो सिचुएशन इंग्लिश में बोल पाएंगे जहां काम भूतकाल में शुरू होकर अभी तक जारी हो। नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे पेस्ट टेंस का इंट्रोडक्शन। होमवर्क। अपनी जिंदगी में चल रहे 3 ऐसे काम लिखिए जो आप लंबे समय से कर रहे हैं और उन्हें प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कमेंट बॉक्स में लिखिए। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग।